Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 13 for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 13 and week number 13. So in our today's lecture, we will going to continue our topic on the response spectrum. कि जो लास्ट क्लासेस थी उसमें हमने response spectrum डिस्कस किया था for a single degree of freedom system structures, कि जो हमारे पास simple oscillators होते हैं, mass spring system होते हैं, damping जो है वो mass spring के थ्रू होती है, तो उस केस के अंदर हम response spectrum के जरिए किस तरह से स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं. So in our today's lecture we are going to continue our topic on response spectrum but for the multi degree of freedom system. जब हमारे पास मल्टी स्ट्रक्चर्स की बात होती है, मेगा स्ट्रक्चर्स की बात होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात होती है, तब हमारे पास वेरियस वेज के अंदर डिफॉर्मेशन जनरेट करता है स्ट्रक्चर. उस केस के अंदर हम स्ट्रक्चर को किस तरह से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड. तो उसको आज हमने डिस्कस करना है. दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स जो है डायनामिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बाय अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बाय अनिल के चोपड़ा. उसके बाद जो है वो मारियो पास विलियम लीग एंड देन नदीम हसन के अंदर एक चैप्टर थोड़ा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन्ड है. इनके अलावा जो है आप यूबीसी कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है सीस्मिक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेवेंट तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में हमने बड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव कोर्स का तमाम हम डिस्कस कर रहे हैं. अर्थक्वेक क्या था, what were the interiors of earth, what is the seismology basically, tectonic plates क्या होती हैं, causes of earthquake क्या हैं, seismic waves क्या होती हैं, उसके ground motions किस तरह से generate होती हैं और seismic waves के types कौन से होते हैं, body waves क्या होती हैं, ground waves क्या थी. उसके बाद हमने ground motions and earthquake parameters पढ़े जिसके अंदर हमने magnitude of earthquake हम किस तरह से measure करते हैं. उसके बाद हम intensity of earthquake किस तरह से elaborate करते हैं. Then we discuss about the seismic design limit state, seismic risk analysis. उसके बाद हमने seismicity of Pakistan and structural system for seismic forces हमने discuss किया. Then in detail we discuss the gross seismic response and influence of the building configuration. उसके बाद हमने damping start किया था, damping in single degree of freedom system structures, कि जब आपके पास simple oscillators होते हैं उसमें हम damping को किस तरह से consider करते हैं. force displacement relationships हमने पढ़े. उसके बाद हमने डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिस्कस की एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड्स को हमने कंप्यूट भी किया. देन वी आल्सो एनालाइज्ड अवर स्ट्रक्चर अंडर अ डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इन नॉर्मल कंडीशंस एंड इन डैम्प्ड कंडीशंस आल्सो. इन सिंपल लोडिंग भी हमने डिस्कस किया, इन अंडर सिंपल हार्मोनिक लोडिंग भी हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने जो है वो उसके डिजाइन एग्जांपल्स भी सॉल्व किए एसटी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के एंड बैंडविड्थ मेथड के जरिए भी उसको सॉल्व किया. Then we started multi degree of freedom system structures. उसके अंदर हमने mass spring system और damped spring system जो है वो दोनों को combine में डिस्कस किया. Then we calculated the eigen values and eigen vectors, how these eigen values and eigen vectors basically representing our structural system in terms of जो है वो हमारे पास various types of quantities होती हैं mass और damping system के अंदर. उसके बाद इन eigen values से हम natural frequencies and natural time periods सब किस तरह से calculate करते हैं with design examples हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की. Then in our last few lectures we discuss about the response spectrum. What was the concept of response spectrum? How we construct the different types of steps while preparing the response spectrum curve. उसके बाद response spectrum analysis क्या होती है, time history analysis क्या होती है. उसके बाद हमने combined DVA spectrum भी डिस्कस किया और उसके चंद design examples भी solve किए. So in our today's lecture, we'll again discuss about the response spectrum method for a multi-degree of freedom systems. कि जब आपके पास multi-degree of freedom system की बात होती है तो response spectrum जो है वो किस तरह से काम करता है. आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे. उसके बाद थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे मॉडल कॉम्बिनेशन रूल्स के. हम जब एनालाइज करते हैं multi-degree of freedom system structure को अंडर डिफरेंट जो है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कंडीशंस के अंदर, तो उसके बाद हम जो है वो सिंपल कॉम्बिनेशन रूल्स वगैरह भी यूज करते हैं, मॉडल कॉम्बिनेशन मेथड्स, उनको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और उन मेथड्स को फॉर रिस्पांस स्पेक्ट्रम इन द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम दोनों को कंबाइन में यूज करके हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का या एक डिजाइन एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे जिसके अंदर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम यूज होगा और उसको हम रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड के जरिए से जो है वो आइडेंटिफाई और सॉल्व भी करेंगे. So coming back to the topic response spectrum method for multi degree of freedom system.
Multi-degree of freedom system basically are normally used for analyzing the structure. के analyze structure multi-degree of freedom system किस तरह से होता है, हम उसके अंदर model analysis यूज करते हैं. Model analysis के different methods हम यूज करते हैं. A typical multi-degree of freedom system with n degrees of freedoms. ये हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर multi-degree of freedom system को बड़ा डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब आप n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए किस तरह से मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, मॉडल एनालिसिस करते हैं, उनको मैट्रिसेस किस तरह से डेवलप होती हैं, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगेन ओवरव्यू नजर आ रहा होगा. वहाँ पे हमने थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशंस की थी, लेकिन पर्पस हमारा वही था कि हमने वहाँ पे मास मैट्रिक्स डेवलप किया, उसके बाद स्टिफनेस मैट्रिक्स डेवलप किया, देन वी डेवलप जो हमारे पास डैम्पिंग मैट्रिक्स डेवलप किया. उसके बाद हमने मैट्रिसेस को सॉल्व करके, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस को सॉल्व करके हमने जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट किए जो कि हमारे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स थे. तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो है सिमिलर चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. तो दोनों जो लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ा था और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं. इसके अंदर मजीद एडिशनल पैरामीटर्स हैं जब हम रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की बात करते हैं. तो दिस सिस्टम व्हेन इज सब्जेक्टेड टू अ ग्राउंड मोशन अंडरगोज डिफॉर्मेशंस इन नंबर ऑफ पॉसिबल वेज. जब हम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की बात करते हैं वी हैव n नंबर ऑफ डिफॉर्मेशंस, और n नंबर ऑफ डिफॉर्मेशंस की तो हम n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आपको एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के xn है आपके पास. उस केस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? दीज डिफॉर्म्ड शेप्स आर नोन एज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और मोड्स शेप. अगर आप रिकॉल करें लेक्चर नंबर 10 को, तो हमने उस लेक्चर के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ मोड्स वगैरह फाइंड आउट किए थे कि हमारे जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हैं वो किस तरह से मोड्स को रिप्रेजेंट कराते हैं. फर्स्ट मोड ऑफ द स्ट्रक्चर क्या था, सेकंड मोड ऑफ द स्ट्रक्चर क्या था, और उसके बाद हमने थर्ड मोड ऑफ द स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. उसके बाद ईच शेप और ईच मोड इज वाइब्रेटिंग विद अ पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी. एक स्पेसिफाइड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर हमारा ऑब्जर्व करता है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्ट्रक्चर हमारा वाइब्रेट करता है. सो द टोटल यूनिक मोड्स फॉर ईच मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आर इक्वल टू द पॉसिबल डिग्रीज या पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की हर चीज जो है वो ईच स्पेसिफाइड सिस्टम्स के हिसाब से मूव कर रही होती है. जिस तरह से आपका मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एक्ट कर रहा है, पॉसिबल हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस है जिसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो सकता है. सो द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम as discussed previously is given here. If we have a mass matrix with acceleration, जो x double dot is representing the acceleration with respect to time, plus c is again जो है वो c किस चीज को रिप्रेजेंट करा रहा है, is the damping coefficient या damping matrix. और damping matrix के साथ हमारे पास x naught t है जो कि velocity को रिप्रेजेंट करा रहा है, plus k matrix basically is the stiffness matrix. x with respect to time is representing basically the displacement with respect to time. So हमारे पास इन तमाम equations का जो cumulative sum बना, that sum in the case of response spectrum is equals to minus mass matrix into response spectrum या response maximum into x double dot g with respect to t. ये तमाम चीजें mass with respect to acceleration, damping with respect to velocity, stiffness with respect to displacement, जो आपका resultant generate होगा that will be overall mass with maximum response of the structure, and x double dot g is representing the maximum ground acceleration. अर्थक्वेक की वजह से ground acceleration with respect to time कितनी आई उसको हम कंसीडर करते हैं x double dot g. और यहाँ पे हमारे पास जब इक्वेशन डेवलप हुई तो इसके अंदर हमारे पास जो n था दैट इज मास मैट्रिक्स विद n by n, यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स हैं, इस वजह से हम बात कर रहे हैं. k is representing the stiffness matrix again with n by n, and c is representing the damping matrix again with reference to n by n. और यहाँ पे जो r है दैट इज बेसिकली इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट वेक्टर जो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर के रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. r is the influence coefficient vector n into n by 1 matrix with respect to one direction, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर जो है वो completely डिफॉर्म होता है. And xt is the relative displacement vector, x dot t is the relative velocity vector, and x double dot t is the relative acceleration vector, and x double dot g is representing earthquake acceleration.
तो ये तमाम पैरामीटर्स थे, हमने इन तमाम पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट इक्वेशन ऑलरेडी मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर हम निकाल के आए। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। So the undamped eigenvalues and eigenvectors of the multi-degree of freedom system can be calculated by using this characteristic equation। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट क्लास लेक्चर्स के अंदर हमने मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर k माइनस लैम्डा m इज इक्वल्स टू 0 एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर की थी। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन k माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू मास मैट्रिक्स इनटू 5 बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग हियर, जो कि आपकी ओवरऑल आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करा रहा है इन द टर्म्स ऑफ i इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के किस स्ट्रक्चर के ऊपर आप कहाँ पे बात कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट पॉइंट है 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स के लिए। सो जब हम इसका डेटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो डेटरमिनेंट इनटू k इज द स्टेबिलिटी मैट्रिक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी बेसिकली आइगन वैल्यू है, और m हमारा मास मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू 0 करके हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट केसेस के अंदर हमने यही चीजें कंसीडर की थी। वहां पे हमारे पास डेटरमिनेंट k स्टिफनेस मैट्रिक्स माइनस हमारे पास ओमेगा की वैल्यू के बजाय लैम्डा था, जो कि लैम्डा बेसिकली अगेन रिप्रेजेंट करा रहा था डिफरेंट आइगन वैल्यूज को, और वहां पे हमने मास कंसीडर भी किया था अगेन। तो एक्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें, जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशंस वगैरह चेंज हुई हैं, और थोड़ा सा जो है वो पेपर जो आपका डिजाइन एग्जांपल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले केस के अंदर से। तो यहाँ पे आप दोनों चीजें जो है वो ऑलमोस्ट हम क्लोजर साथ साथ लेके चल रहे होंगे। सो हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग आइगन वैल्यू ऑफ द ith मोड, और 5 जो फैक्टर है दैट इज आइगन वेक्टर, जो कि मोड ऑफ द स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करा रहा है कि स्ट्रक्चर इज फॉलोइंग इन फर्स्ट मोड, इन सेकंड मोड और इन थर्ड मोड। एंड ओमेगा i बेसिकली इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन द ith मोड, जो कि जिस स्ट्रक्चर के ऊपर जिस लेवल